यस माय डियर्स, यू नो वेरी वेल कि हम आपके लिए हमेशा का लिखते हैं एक फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड में हम देखने वाले हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ information and knowledge you should always keep in your mind to score maximum marks in the Harvard and to achieve your final destination, right? So, and then we shall understand where this particular organelle is most abundant, and then we will observe its number per unit per millimeter square, and then we will see how many chloroplasts can exist per cell, and then we will observe, understand the detailed structure of this very great organelle, that is the only organelle that is going to capture sunlight and convert solar energy into the calorie energy. We want to start with definition, right? Organelle of the plant cell. Organelle of the plant cell that is used to impart color, ठीक है, to the plant cell is known as what? The plastid. We call it what? Plastid. And you know very well that there are three types of plastids. Number one, chromoplast. Number one is chromoplast. And then number two is leucoplasts. And finally, number three is chloroplast. Right? तो क्लोरोप्लास्ट मेरे पास कौन सा प्लास्टिड है? That imparts green color. That imparts green color is called as chloroplast. And what is meant by the term leuco? Leuco means white. तो जहां जहां भी आपको प्लांट बॉडी में वाइट, मिल्क वाइट और सेमी मिल्क वाइट कलर नजर आता है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट द रेडिश और if you look at the turnip, so these particular substances, they are basically milk white. They are very very rich in leucoplasts, and their chief function is storage of the food, right? तो ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ द फूड में इस्तेमाल होते हैं. On the other hand, being green, these particular chloroplasts, they are used to capture sunlight. They are used to capture what? The sunlight. And once light is captured, it can be consumed to synthesize what? Carbohydrates. Now, what should be the job of what? Chromoplasts. So answer is very simple. Chromo means color. I think you have read this thing in chapter number 4. Whenever we use the term chrome, chromes mean color. So, आप करें क्या स्टूडेंट्स कि कलर पैलेट में से पाकिस्तान के फ्लैग का रंग निकाल दें. मीन्स ग्रीन एंड वाइट. निकल गया पाकिस्तान का रंग. बाकी दुनिया में जितने भी कलर्स हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग अ वेरी ह्यूज ग्रुप ऑफ plastids that is called as chromoplast. So, purple, right, red, blue, pink, all these are basically making various types of what? Chromoplasts. And if you look at the function, they are chiefly playing their role as an attractant. Different जो फूल हैं उनके रंग को अट्रैक्ट होती हैं different किस्म की insects, and then they definitely help them in their reproduction and pollination. And then the peels of different fruits, they are also very attractive due to presence of what? Chromoplast. The only logic behind this very, you can say, artistic approach is to disperse the seeds. आपको पता है कि फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स.
तो जब भी फ्रूट पक जाते हैं तो डिस्टेंस से, काफी डिस्टेंस से नजर आते हैं किसको, एनिमल्स को। तो एनिमल्स वहां तक पहुंचते हैं, फूड वो खुद खा लेते हैं और सीड्स को रास्ते में डिस्पर्स करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो कलर है, इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। तो ये हमेशा सीड्स को डिस्पर्स करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये है 3 डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड। आज हम इसमें से जिस पर्टिकुलर प्लास्टिड को फोकस करने वाले हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सो लेट्स मूव टू द व्हाट नेक्स्ट column of the board. We have discussed the definition and its various types, and now we want to move, we want to study the occurrence, right? So we want to write over here what the occurrence. अगर मैं occurrence की बात करूं, my dear students, तो they are present in all parts of the plant body. ये तो हर जगह पाई जाती है। यही तो डायग्नोस्टिक फीचर है मेरे प्लांट का कि उसके पास प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मैं एबंडेंस की बात करूं तो जो जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, दे आर मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इन द लीव्स के अंदर, राइट? लीव्स में पाए जाते हैं। सो ये भी डिस्कस हमने कर लिया कि दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द लीव्स। अब अपने करना स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये है डायग्राम जाहिर है किसी प्लांट की, राइट? दिस इज अ प्लांट बॉडी एंड डेफिनेटली वी हैव प्लेस्ड इट इन अ पॉट, पोर्सलिन पॉट, मिट्टी का बना हुआ गमला जिसे बोलते हैं, उसमें लगा दिया हम लोगों ने। एंड नाउ वी वांट टू प्लक अ लीफ फ्रॉम द स्टेम and then we want to see what is basically lying inside the leaf. So look at this is a leaf, right? अब आप इमेजिन ये करें कि ये लीफ की अपर सरफेस है, राइट? और ये लीफ की लोअर सरफेस। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप किसी लीफ को ऊपर से देखें तो वो डार्क कलर का होगा और किसी लीफ को नीचे से देखें तो वो लाइट कलर का होगा। वेरी कंट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। और एक ऐसा लीफ जिसकी दोनों साइड्स में बड़ा वाज़ेह फर्क हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? बाइफेशियल लीफ, 2 चेहरों वाला। ये डार्क चेहरे वाला साइड है और ये लाइट चेहरे वाली साइड है, बाइफेशियल, राइट? इस तरह इस पर्टिकुलर लीफ की भी क्या है? 2 साइड्स, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। और ये जो मेरे पास ऊपर वाली साइड है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, अगर मैं इस पर्टिकुलर साइड को देखूं तो मुझे नजर आएगा कि इसके ऊपर एक बहुत ही फाइन, एक बहुत ही थिन सी लेयर है एक वाटरप्रूफ मटेरियल की, एंड दैट वेरी वाटरप्रूफ मटेरियल इज नोन एज क्यूटिकम। इट इज अ वैक्सी लेयर। आई थिंक कि जब हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाया था या हमने मिलकर पढ़ा था तो हमने देखा था, एक एनिमेशन भी हमने लगवाई थी आप लोगों के लिए कि जो लीफ है उसकी ऊपर वाली सरफेस बहुत ज्यादा शाइनी कैसे है। तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वैक्सी लेयर दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। अब हम इस लीफ के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, इनसाइड द लीफ। जब मैं उसमें मूव करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लीफ के नीचे देयर इज अ लेयर ऑफ लिविंग सेल्स। लुक एट दिस, ये लेयर ऑफ लिविंग सेल। दीज पर्टिकुलर सेल्स आर डम्बल शेप्ड, दरमियान में से मोटे हैं और साइडों से पतले हैं, राइट? चलिए हम एक एनालॉजी यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास एक बुक है, एक कार्ड या गत्ता बुक के ऊपर लगा हुआ है और दूसरा कार्ड या गत्ता बुक के नीचे लगा हुआ है। ये समझ ले मैं उसी गत्ते की बात कर रहा हूं जो ऊपर है। वो जो गत्ता बुक के ऊपर है इसे हम नाम क्या देते हैं? इसे हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस। इसे हम क्या नाम देते हैं? अपर एपिडर्मिस। सिमिलरली ऐसी एक लेयर नीचे भी है, जैसे बुक के नीचे गत्ता है वैसे यहां पे भी एक गत्ते नामा चीज प्रेजेंट है, और उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं? लोअर एपिडर्मिस, समथिंग लाइक इट। दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस। बट ये जो लोअर एपिडर्मिस है इट इज डेफिनेटली डिफरेंट from the upper epidermis, not in the terms of shape,
but in the terms of having some very, very special kidney shaped cells, those are called as what? Guard cells. What we call them as? Guard cells. So look at this. There is no guard cell in the upper epidermis, and there are many guard cells in the lower epidermis. Right, so these are again what? Guard cells. And these particular guard cells, they have got a hole in the center, and that very hole somewhere here, we are going to label it properly. We call it as what? Stomata. Stomata. Right? We want to continue, and we don't want to waste our time in making more number of stomata, just we want to continue with the lower epidermis, यानी कि आपकी बुक का नीचे वाला गत्ता है. अब अगर मैं आप लोगों की बुक का साइड व्यू देखूं तो वो किसके एनालॉगस हो गया? इस लीफ के साइड व्यू से. तो मुझे क्या नजर आएगा स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर ऊपर वाले गत्ते के नीचे मुझे क्या नजर आ रहे हैं? नीज अपर एपिडर्मिस के नीचे नजर आ रहे हैं मुझे इस तरह के फिंगर लाइक टाइटली पैक्ड सेल्स, समथिंग लाइक इट. और ये जो मेरे पास फिंगर लाइक टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? हम इतना ही ड्रॉ करेंगे, बाकी वेस्ट ऑफ टाइम है, हम उसको जाया नहीं करेंगे अपने टाइम को. इसे नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स. पैलिसेड मेसोफिल सेल्स. राइट. अब इन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, एंड दे आर oval in shape, for example, although they don't have definite shape, but we can call it as oval shape, and they are basically having what? Very large intercellular spaces. And these particular cells जो यहाँ से यहाँ तक पाए जा रहे हैं, we call them as what? Spongy mesophyll cells. Spongy mesophyll cells. Although these two cells have very distinct morphology, but still one thing is common, and that is the presence of dots. Look at these dots. Right? These particular dots are representing what? Chloroplast. So, number of chloroplasts are maximum in the mesophyll cells. Right? And you know very well, being the plant cell, there is a very large vacuole inside. यहाँ पे vacuole है हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेंटर में, because की plant cell. Something like it. So this particular thing is called as vacuole, and this very structure is called as what? Chloroplast. Got the point? Same sort of dots are also present in what? Palisade mesophyll cell. But if you look at the number of these particular dots, they are much higher in these particular cells. Right? अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास कितने होते हैं, क्या नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स पर यूनिट एरिया, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट 500,000 पर व्हाट मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में 500,000 सेल तक हो सकते हैं. अब अगर मैं इनमें से हर एक सेल के अंदर झांकूं तो मुझे पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 20 से लेके 100 तक ये वाले डॉट्स हो सकते हैं पर सेल. अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितने रिच हैं ये वाली लेयर्स किनमें? क्लोरोप्लास्ट. राइट. अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि अब हम इसमें से एक इंडिविजुअल सेल को ड्रॉ करते हैं और देखेंगे इस इंडिविजुअल सेल के अंदर हम फर्दर क्या चीज फाइंड कर सकते हैं. लुक एट दिस माय स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ मेसोफिल सेल. ये मेरे पास एक मेसोफिल सेल. आपको पता है कि हमारे पैलिसेड मेसोफिल सेल में भी
और स्पंजी बेसोफिल सेल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एंड यू नो वेरी वेल कि हमने डिस्कस किया था कि दीज पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट दे आर बेसिकली लाइंग इन पेरिफेरल पोजीशन, ये साइडों पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके सेंटर में यू नो वेरी वेल कि यहाँ एक बहुत बड़ा क्या होता है, वैक्यूल। जाहिर है यहाँ पे हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल। और ये जो मैंने डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाई है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट्स। तो आए हम अब इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से स्टडी करते हैं। जब हमने स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और उसके बाद हमने उसकी फर्दर एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चला कि इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन्स, राइट, एक है इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक है इसकी इनसाइड मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, राइट। मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट, एंड इनर वन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, व्हाट इज इट्स नेम, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब इन दो मेम्ब्रेन्स के अंदर एक खाली जगह है, दिस होल कैविटी, ये सारी जगह, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं क्लास अपनी में, आपको भी बता रहा हूं कि समझ लीजिए क्लासरूम है। इस पर्टिकुलर क्लासरूम में ऑल अराउंड वॉल्स है, नीचे फ्लोर है और टॉप पे रूफ। तो इन चार दीवारों और फ्लोर और रूफ के दरमियान में बेसिकली एक कैविटी है, जहां डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हुए हैं। उस पर्टिकुलर कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा। सो कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोमा। अब स्टूडेंट्स क्या ये स्पेस खाली है, तो डेफिनेटली आंसर इज नो। जैसे क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ चीजें मौजूद नजर आती हैं। उनमें से एक चीज क्या है, फ्लूइड, दैट इज बेसिकली फिलिंग दिस कैविटी, एंड दिस वेरी फ्लूइड इज वेरी मच रिच इन प्रोटीन्स। इट इज अ fluid filled cavity, and this particular fluid filled cavity is filled with protein rich, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सूप, राइट, इसमें सूप प्रेजेंट। अब आप पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सूप में इतनी ज्यादा प्रोटीन होने की क्या लॉजिक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसी पर्टिकुलर सूप में हमारे पास चलता है डार्क रिएक्शन। तो उस पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन की जितनी भी एंजाइम है वो इसी पर्टिकुलर सूप में डिसॉल्व्ड होते हैं, राइट। तो स्ट्रोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से लोकेशन, बिकॉज जैसे मैंने लिखा है इसको डार्क से कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अगर आप डार्क रिएक्शन को एक और नाम देना चाहे तो वो स्टूडेंट्स क्या था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट। तो ये रिएक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है और हम इसे नाम देते हैं, आप पढ़ के आए लास्ट क्लासेस में, केल्विन साइकिल। तो इस पर्टिकुलर केल्विन साइकिल को ऑपरेट करने के लिए जितने भी एंजाइम हैं, दोज आर डिसॉल्व्ड इन स्ट्रोमा। प्लस आप लोगों ने एक बात और बहुत गौर से सुननी है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट है क्या, इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए, राइट, डीएनए ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आपको याद है कि हमारे इस पर्टिकुलर सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं कि जिनका अपना इंडिपेंडेंट डीएनए है। उनमें से एक यही क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे मैं क्या बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये दोनों मींस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं। लिखते हैं आप लोगों के लिए कि क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, राइट। तो ये डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस के अंडर अपने नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं।
प्लस डेफिनेटली इनके पास अपने अलग क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ राइबोसोम्स, के राइबोसोम्स इस पर्टिकुलर एंडोसिम्बायोट प्रोकैरियोट को क्या कर रहा है, प्रोटीन बना के दे रहा है। तो ये राइबोसोम्स दे आर बेसिकली मेकिंग प्रोटीन्स फॉर द क्लोरोप्लास्ट। तो इसका अपना डीएनए भी है और इसकी अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन्स भी, राइट। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड फिल्ड कैविटी में इस प्रोटीन रिच सूप के अलावा क्या है। तो मुझे नजर आता है कि इसके अंदर हमें मेम्ब्रेन का एक वेल कनेक्टेड इंट्रिकेटेड सिस्टम नजर आता है इसके अंदर लगा हुआ। यानी कि अगर आप लोग इसको बिल्कुल फ्लैट वे में देखेंगे तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह की लाइंस, इस तरह की डार्क लाइंस आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड नजर आती, राइट। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और फर्दर डिटेल में जाकर देखते हैं तो मुझे पता चलता है स्टूडेंट्स कि बेसिकली ये जो एरियाज मुझे क्रॉस सेक्शन में ऐसे नजर आ रहे हैं, इरेज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि ये बेसिकली स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स है। अब हम इसको 3D व्यू में जरा डिटेल से ड्रॉ करके देखते हैं कि समथिंग लाइक इट, कि जैसे ये एक सॉसेज है, ये समथिंग लाइक इट, ये एक सॉसेज, इसके नीचे एक और सॉसेज या प्लेट है, उसके नीचे एक और सॉसेज या प्लेट है, उसके नीचे एक और सॉसेज या प्लेट। इसको समझाने के लिए मैं आमतौर पे एग्जांपल लेता हूं किसी चावलों वाले गोदाम की या चीनी वाले गोदाम की या गंदम वाले गोदाम की। आप देखते हैं कि उस पर्टिकुलर गोडाउन में, उस पर्टिकुलर गोदाम में जो आटे और चीनी या चावलों की बोरियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं हम लोगों ने। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी स्टैक्ड मेम्ब्रेन फिल्ड वेसिकल्स हैं। मैंने आपको हमेशा बताया वेसिकल क्या होता है, कैविटी दैट इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल शॉपिंग बैग हो और उस शॉपिंग बैग को आप इन्फ्लेट कर दे, वो फूल जाएगा। नाउ इट इज अ एयर फिल्ड वेसिकल। तो यहां पे भी ये क्या है, वेसिकल्स है। ये वेसिकल दूसरे के ऊपर रखे हुए, राइट। इन पर्टिकुलर वेसिकल्स को देखा जाए तो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, राइट। ये वाले जो वेसिकल्स हैं ये क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ये आपस में कनेक्टेड है, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, ऐसे कनेक्टेड। इस पर्टिकुलर स्टैक को, इस पर्टिकुलर स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेना। तो एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है। इस पर्टिकुलर ग्रेना में से की जो एक सैक है, एक सिंगल सैक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट, ग्रेनम, राइट। और ये जो चीजें इनको आपस में लिंक कर रही हैं, जोड़ रही हैं, इन्हें हम नाम देते हैं व्हाट, इंटरग्रेना। इंटरग्रेना कि ये दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली कोई चीज है, राइट। तो इस तरह की न्यूमरस स्टैक्स, they are basically occupying what the lumen of what, क्लोरोप्लास्ट। एक लूमन वो है जिसमें ये पर्टिकुलर ग्रेना है। अब मैं बात कर रहा हूं एक और लूमन की जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सैक के अंदर है। इट इज लाइंग इनसाइड द सैक, इट इज द लूमन ऑफ ग्रेनम। ये ग्रेनम का लूमन है। तो ये जगह क्या है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं, ये बेसिकली लूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो डोंट कंफ्यूज दीज टू कैविटीज विद वन अनदर। क्लोरोप्लास्ट की कैविटी का नाम है लूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ग्रेनम की कैविटी का नाम है लूमन ऑफ द ग्रेनम। ये दो डिफरेंट चीज। अब इस पर्टिकुलर ग्रेनम को अगर मैं फर्दर मैग्नीफाई करके देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रेनम के बाहर एक वेरी वेरी स्पेशल मेम्ब्रेन। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली मेम्ब्रेन डिफरेंट है और वो मेम्ब्रेन जो बेसिकली ग्रेनम को इनक्लोज कर रही है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन। हाउ इट इज डिफरेंट? बिकॉज दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन हैव गॉट सम स्पेशल एडिशंस। वो जो स्पेशल एडिशंस हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी की रोल इन द लाइट रिएक्शन। चूंकि ये वाली
एडिशंस कहाँ प्रेजेंट हैं? सिर्फ और सिर्फ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, इसलिए लाइट रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रेनम में हो सकता है, राइट। आइए हम इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम लिखते हैं। नेम ऑफ दिस वेरी ग्रेनम इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। बहुत से लोग इसे थैलाकॉइड भी बोलते हैं, बट इन फैक्ट इट इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, right? Membrane that encloses the granum is called as thylakoid membrane. And this particular thylakoid membrane, it has got a lumen inside. इसके अंदर एक lumen है, there's something like it. And this particular lumen is filled with what? Different precursors of light and dark reactions. Precursor का मतलब होता है mother molecules, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के साथ जो चीजें अटैच हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लुक एट दिस। कोई चीज यहां अटैच है, फॉर एग्जांपल दैट स्पेन्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इसके आर पार गुजरी हुई है, इसे नाम देते हैं फोटोसिस्टम। फिर इसके साथ मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इन फोटोसिस्टम से मूव करवाएंगे फ्रॉम वन फोटोसिस्टम टू other photosystem. Say I am going to draw another photosystem somewhere here, right? तो ये एक और photosystem। अब ये दोनों के दोनों photosystems बेसिकली इलेक्ट्रॉन को किसी चैनल में से गुजार रहे हैं और इवेंचुअली इससे क्या बना रहे हैं? दो चीजें। एक को हम नाम देते हैं व्हाट? ATP, और दूसरे को हम नाम देते हैं NADPH2। अब ये जो ATP और NADPH2 है ये कहाँ रिलीज होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो इस पर्टिकुलर ग्रेनम से बाहर रिलीज होगा। एटीपी भी स्ट्रोमा में आ जाएगा और NADPH2 भी स्ट्रोमा में आ जाएगा। आप ये समझ लें स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास चार्ज्ड बैटरीज हैं और इन बैटरीज को चार्ज किसने किया है? इन ग्रेनम ने। कैसे? लाइट रिएक्शन के थ्रू। लाइट रिएक्शन ने इस ATP को भी चार्ज कर दिया, मीन उसमें एनर्जी भर दी, और NADPH2 को भी एनर्जाइज कर दिया, राइट। कैसे किया, कैसे होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाली चार्ज्ड बैटरीज फिर बाद में इस ग्रेनम में प्रेजेंट एक साइकिल को ऑपरेट करती है, राइट। उस पर्टिकुलर साइकिल को हम नाम देते हैं क्या? केल्विन साइकिल, राइट। और इस केल्विन साइकिल के थ्रू फिर ये वाला क्लोरोप्लास्ट हमें क्या बना के देता है? फर्स्ट ट्राइओसिस एंड देन हेक्सोसिस एंड सो ऑन, राइट। तो ये है स्टूडेंट हमारे पर्टिकुलर इस क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, राइट। अब हम बहुत क्विकली इस स्ट्रक्चर का रिव्यू लेते हैं। ये मैंने लिया था कोई भी मेसोफिल सेल, मे बी पैलिसेड मेसोफिल और मे बी स्पंजी मेसोफिल सेल। इस पर्टिकुलर मेसोफिल सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल है और साइड पे जाहिर है साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। अब हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो मुझे पता चला कि क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, राइट, and it has got a cavity inside that is called as the lumen of the chloroplast. And now this particular lumen is filled with a proteinaceous substance. Why proteins are there? Because we want to synthesize new enzymes for it. We want to synthesize protein for itself, and then we want to synthesize what? DNA, and we want to carry out the Calvin cycle. So all these activities demand lot of enzymes. तो ये सारे के सारे एंजाइम इस पर्टिकुलर स्ट्रोमा के फ्लूइड में सस्पेंडेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था सूप्ड, राइट। फिर इसी पर्टिकुलर कैविटी में हमें स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन नजर आती हैं, राइट। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की एक बहुत क्विक सी समरी अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमेज, राइट। सो लुक एट दिस। दिस इज बेसिकली अ photosynthetic cell. We call it as of course a mesophyll cell, and this particular mesophyll cell, it has got a central large vacuole that is surrounded by the cytoplasm, and in this particular peripheral cytoplasm there are what? Suspended particles or organelles known as what? Chloroplasts. Now look at the interior structure of the chloroplast. This particular chloroplast has got what? Two membranes, outer and inner. You know, for your convenience we have drawn these two membranes with two different colors, right? And there is a space between the outer membrane and the inner membrane. And then we have a huge cavity inside. Look at its blinking. This huge cavity is called as what? Stroma. In this particular stroma, look at this, it is a fluid, right?
that is carrying out the process of cyclosis, इस पे घूमता रहता है, and that very fluid is of course the fluid of what? Chloroplast. And this particular fluid is basically very much rich in proteins, and you know all enzymes are proteins. A huge biochemical activity is taking place inside this particular chloroplast. Therefore, numerous enzymes are here to run the Calvin cycle, to run the definitely light reaction, to form the its own DNA. So lot more enzymes are there, and lot more enzymes are basically making it a gelatinous appearance. And of course, all precursors of this particular activity, they are all suspended in the fluid of the stroma. Do you think there is only a fluid? Answer is no. There are a very intricate membrane systems are present. These particular membrane systems are interlinked with one another, and these particular systems, they also have distinct appearance at certain points, and these distinct appearances are what? The stacks of membranes lying over one another, and these particular stacks, they are carrying out what? The process of light reaction. And what is happening in the stroma? Definitely dark reaction or light independent reaction. Now we want to peep inside what? The grana. These particular membranes, they are lying at over one another. They are making what? Grana. And you know, look at these membranes. These membranes are joining the two grana with one another, and they are called as what? Intergrana. Inside this particular grana, there are many granum. Single sac is called as granum. And if we want to move inside the granum, so we have to cross a special membrane, and that very special membrane is called as thylakoid membrane. Remember, this thylakoid membrane is different from the outer membrane. This thylakoid membrane has got many, you can say, additions. Addition mean इजाफा है उसके अंदर किस चीजों का? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का, इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स का एंड डोनर्स का, और उसे हम डेफिनेट बात है फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, बट हम बहुत क्विकली यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर इज अ फोटो सिस्टम, and then there is electron transport chain, then there is another photosystem, and all these things, they are basically carrying out nothing other than the production of what? ATP and NADPH2, and then these two ATP and NADPH2, they are operating over there, what? A cycle that is called as Calvin cycle, and this Calvin cycle is giving us what? Of course, carbohydrates. I hope after this much, you can say revision and illustration, you would be able to answer each and every question that may be asked in the Lahore board. I wish you very good luck, and always keep your eyes open and brain open and book open to achieve your target. Take very good care of yourself and your parents. Till next lecture, bye bye.